Hello viewers, I am Amir Sadranja and today our topic is unitary state. It is also called unitary form of government. Let's start with the definition of a unitary state. A unitary state is a state in which all the governmental powers are vested in a single central government by the constitution that may be written or unwritten. There are no constitutionally recognized federating units in a unitary state. Resultantly, there is no distribution of power between the center and the federating units, as there are no federating units in this form of government. आज का हमारा टॉपिक वादानी तर्ज़ हुकूमत है। वादानी तर्ज़ हुकूमत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत होता है जिसके अंदर हुकूमत के तमाम इख्तियारात एक वाहिद मरकज़ी हुकूमत के पास होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस रियासत के अंदर वफाकी इकाइयाँ मौजूद नहीं होती। चूँकि इस रियासत के अंदर वफाकी इकाइयाँ मौजूद नहीं होती तो इस वजह से इस रियासत के अंदर वफाकी रियासत की तरह इख्तियारात की तकसीम जो है वो हुकूमतों के दरमियान नहीं होती। इस रियासत की मिसालें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और ईरान हमें मिलती हैं। When we say that there are no constitutionally recognized federating units in this type of state, it does not mean that there is no geographical subdivision in this state. The country or the state is divided into various smaller units and these units are called administrative units. They are not the federating units. They are the administrative units and this division is done on the basis of administration and this division is done for the administrative purpose. The powers used by these units are these administrative units are delegated. They are not original. These powers are delegated to these administrative units by the central government. जब हम कहते हैं कि इस रियासत के अंदर वफाकी इकाइयाँ मौजूद नहीं होती तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इस रियासत के अंदर किसी किस्म की कोई जोग्राफियाई जो है वो तकसीम नहीं होती। इस रियासत के अंदर भी तकसीम होती है और रियासत को मुख्तलिफ़ छोटे छोटे यूनिट्स के दरमियान तकसीम किया जाता है और इनको इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम किया जाता है और इन यूनिट्स को इंतज़ामी इकाइयाँ कहते हैं। इन यूनिट्स के इख्तियारात होते हैं वो तफवीज़ करता होते हैं यानी डेलीगेटेड होते हैं। इनके जो इख्तियारात होते हैं वो मरकज़ी हुकूमत इनको डेलीगेट करती है या तफवीज़ करती है। These administrative units may be called the cantons, they may be called the districts and even in some unitary states they are called the provinces. But actually these units are administrative units and these provinces don't have the original powers. When we say that these units have delegated powers, it means that their powers are not original. These delegated powers which have been delegated from the center to these administrative units can be withdrawn or taken back at any time. The implication or the legal effect of this arrangement is that if these powers which have been delegated from the central government to these administrative units are taken back or withdrawn at any time, there is no legal remedy against it. It means that the units cannot claim at any forum that their powers has been usurped or their powers has been withdrawn or taken back. And due to such an arrangement, the status of these administrative units is that of subordinate. These units are subordinate to the central government. They don't have their original powers, they don't have their own sphere of powers, they don't have the autonomy regarding their matters. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि इन इंतज़ामी इकाइयों के पास अपने इख्तियारात नहीं होते बल्कि इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से या मरकज़ी हुकूमत से तफवीज़ करदा इख्तियारात होते हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक कानूनी या आइनी पहलू ये निकलता है कि अगर किसी वक्त पे मरकज़ी हुकूमत इन इकाइयों से वो इख्तियारात वापस ले ले
तो इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होती। यानी जो इकाइयाँ होती हैं या इंतज़ामी इकाइयाँ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, ये इस एक्शन के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते, किसी फोरम के ऊपर ये जाके क्लेम नहीं कर सकते कि इनके इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। तो इस वजह से एक यूनिटरी स्टेट या एक वादानी स्टेट के अंदर ये इंतज़ामी इकाइयाँ एक सबऑर्डिनेट पोजीशन रखती हैं। इकाइयाँ मरकज़ी हुकूमत के मातहत होती हैं और मरकज़ी हुकूमत जब भी चाहे इनको कोई हुक्म सादर कर सकती है और इनके इख्तियारात जो हैं वो वापस ले सकती हैं। जबकि एक वफाकी तर्ज हुकूमत के अंदर ऐसा नहीं होता, जहाँ पे वफाकी इकाइयों की जो हैसियत होती है वो आइनी होती है। तो मैं अगर सादा अल्फाज में ये चीज़ आपको समझाऊं तो दोनों यानी वफाकी और वादानी तर्ज हुकूमत जो है, यानी फेडरल स्टेट और यूनिटी स्टेट के अंदर इकाइयाँ मौजूद होती हैं, लेकिन वफाकी तर्ज हुकूमत के अंदर जो इकाइयाँ मौजूद होती हैं उनकी एक आइनी पोजीशन होती है, उनकी एक आइन में के अंदर उनकी पोजीशन या उनके इख्तियारात दर्ज होते हैं। जबकि जो इकाइयाँ एक वादानी तर्ज हुकूमत के अंदर या एक यूनिटी स्टेट के अंदर होती हैं उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं होती, बल्कि उनकी कानूनी हैसियत होती है। किसी पार्लियामेंट के आम जो कानून होते हैं उसके तहत उनको इख्तियारात दिए जाते हैं और उसी तरह एक सिंपल तरीके से वो इख्तियारात कभी भी वापस ले सकते हैं। तो वफाक के अंदर, फेडरल स्टेट के अंदर इकाइयों की पोजीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और वादानी तर्ज हुकूमत के अंदर जो इकाइयाँ मौजूद होती हैं उनकी हैसियत आइनी नहीं होती बल्कि कानूनी होती है। किसी आम कानून के तहत उनको इख्तियारात दिए जाते हैं और वो किसी वक्त भी मरकज़ी हुकूमत जो है वो वापस ले सकती है और इस लेने के अमल के ख़िलाफ़ कोई जो है वो कानूनी चाराजोई नहीं की जा सकती। इस वादानी तर्ज हुकूमत को मैं मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वादानी तर्ज हुकूमत की फ़ीचर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको फर्दर एलेबोरेट करूँगा। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।